Yes, children. So now we are going to discuss the types of motion. We have discussed it earlier in the terms of rectilinear, circular, rotatory, in the terms of point mass, oscillation and vibration. So now we are going to study कितने टाइप का मोशन हो सकता है, राइट. हाउ वी कैन जज ऑन द बेसिस ऑफ कौन से डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है या पॉइंट मास जा रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, राइट. सो बेसिकली इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स: 1 डायमेंशनल मोशन, 2 dimensional motion and 3 dimensional motion. So today we are going to discuss about all of them. So first one is 1 dimensional motion. 1 dimensional motion means whenever any one, we have studied about frame of reference. Frame of reference means any set of coordinate axes in which the observer is observing with respect to time. He has a clock in his hand. So 1 dimensional motion में क्या होता है, कोई भी एक डायमेंशन चेंज हो रहा है. आउट ऑफ x y z body is only moving along x direction or only moving along y direction or only moving along z direction, then we say that the body is having 1 dimensional motion. जैसे आपने बहुत नैरो रोड लिया, a car traveling on a narrow road for few kilometers. नैरो रोड मीन्स वो यू टर्न लेके वापस नहीं आ सकती, तो स्ट्रेट ही जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, प्रोवाइडेड देयर आर नो पिट्स एंड ऑल ऑन द रोड. सो देन इन दैट केस वी से दैट द बॉडी इज अंडर 1 डायमेंशनल मोशन. अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तुम्हें पता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी नीचे ही जाएगी इन 1 डायमेंशन ओनली. So then it is also considered as 1 dimensional motion. So how we define it? A body is said to be under 1 dimensional motion if 1 out of 3 coordinate changes with respect to time, right? Say there is a very thin straw, in that straw there is a caterpillar. So caterpillar has no other option rather than moving in a particular direction. So then we say that the motion of the caterpillar is a 1 dimensional motion. So all these are the examples of 1 dimensional motion: freely falling body, motion of a train, motion of a car on a narrow road, etc., etc., right? Now coming to the 2 dimensional motion. 2 dimensional motion जैसे नाम से ही पता चला है, तो बॉडी कहाँ मूव कर रही है, एक्स वाई डायरेक्शन में या वाई जेड डायरेक्शन में या एक्स जेड, मतलब बॉडी या तो यहाँ है या तो यहाँ है या तो यहाँ, यही 3 पोजिशन हो सकती हैं बॉडी की, राइट. एक्स वाई में मतलब बॉडी यहाँ है तो मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा. बॉडी यहाँ है मतलब उसका जेड भी होगा यहाँ पे. अभी आप 1 को देखो, हमने कहा बॉडी यहाँ पे है तो मतलब इतना एक्स में और इतना वाई में बॉडी ने ट्रेवल किया है. बॉडी यहाँ पे है मतलब इतना वाई में है और इतना जेड में है, उसके 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें. बॉडी यहाँ पे है मतलब इतना एक्स है और इतना जेड है, तो तीनों ही केसेस में हमें क्या मिलेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. बॉडी के पास 2 ऑप्शन है, एक्स में भी जा सकती है, वाई में भी जा सकती है, या दोनों के बीच में भी जा सकती है. Then we say that the body is in 2 dimensions. So definition wise, a body is said to have 2 dimensional motion if any 2 coordinates out of 3 are changing with respect to time. Time के साथ साथ कोई भी 2 coordinate change हो रहे. For example, you are hitting striker and the carom coins move here and there. Provided हम ये नहीं कह रहे कि carom coin holes में गिर गए, उसको ignore कर दो. कैरम कॉइन कहाँ मूव करेंगे, या तो एक्स या तो वाई, कैसे भी मूव करके उनके पास वही 2 ऑप्शंस है, एक्स या वाई, until they fall down or they jump out of the carom board. We have 2 options. Similarly, billiards ball, you are hitting it by the stick, putting a shot, then billiard ball will move x or y or x or y, ignoring fall. Fall अगर ignore आपने लिया तो then we have to consider that as 3. But movement of billiard ball on the billiard table is an example of 2 dimensional motion. Similarly, motion of earth around the sun, very very important. Motion of earth around the sun, ये हमारा sun लिया हमने, ये हमारी earth ले ली, earth ऐसे move किए जा रही है. अभी हमने क्या कहा कि ये हमने sun ले लिया और अर्थ मूव कर रही है इसके चारों तरफ, ये मैंने मून ले लिया, ये मैंने अर्थ ले लिया, अर्थ ऐसे मूव कर रही है. अगर हम यहाँ पे एक बड़ा सा पेपर रख दें तो वो बड़ा सा पेपर किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन ऑफ अर्थ. प्लेन हम कैसे बनाते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन बनेगा. सो इस 2 डायमेंशनल प्लेन में ही अर्थ को मूव करना है. ये 2 डायमेंशनल प्लेन छोड़ के अर्थ नीचे नहीं जा सकती, अर्थ ऊपर नहीं जा सकती. इट कैन नॉट लीव द ऑर्बिट, इट हैज टू बी इन दिस प्लेन. अभी इस प्लेन को अगर हम देखें या तो एक्स में x माइनस एक्स या y माइनस वाई, मतलब इधर x और y, तो इट इज मूविंग इन
2 dimension. So motion of earth around the sun is not a 3 dimensional motion but a 2 dimensional motion. So there could be so many examples. A car moving zigzag on the road. Zigzag का अगर हमने बात का या U turn लिया, so again the same car which was on narrow road was the example of 1 dimension, but the same car moving zigzag on the road will be the example of 2 dimensional motion. Coming to the last one, that is the 3 dimensional motion. 3 dimensional motion means कहीं भी जा सकते हैं बॉडी, x में भी, y में भी, z में भी. When all the 3 coordinates are changing with respect to time, the body is said to have 3 dimensional motion. अभी मैंने कहा कि बॉडी यहाँ है, तो यहाँ पे तुम पता लगा सकते हो इतना x है, इतना y है, और ये जो है ये z है. So when the body is all the 3 coordinates of the body is changing, we say that the body is in 3 dimension. A flying kite, a flying bird, motion of the aeroplane, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी. All 3 dimensions can be changed. So the body is said to have 3 dimensional motion. When all the 3 coordinate axes are changing with respect to time, we say that the body is under 3 dimensional motion, right? Coming to the next topic, that is distance and displacement. Whenever the body is traveling a particular length of the path, body को A से और B तक जाना है. अभी बॉडी यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, इधर से घूम के यहाँ पे आई, या बॉडी ऐसे आई, या बॉडी ऐसे आई, राइट? ये उसने लिया रूट 1, ये उसने लिया रूट 2, ये उसने लिया रूट 3, कैसे भी आ सकती है बॉडी, राइट? Whenever a body travels and there is some length which is measurable, the length of the path traveled by the body is termed as the distance. कितना distance travel किया उसने? It could have via any path, but it will always be positive. आप घर से निकले, शॉप तक जाना था, फिर आपको याद आया बैग नहीं लिया, फिर आप वापस आए. निकले थे आप सपोज फ्रॉम ए, आप गए 2 किलोमीटर्स, फिर वापस आए, बैग भूल गए, फिर वापस आए, 2 + 2 4, फिर आगे जाके यहाँ पे आए 5 किलोमीटर्स. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 9 किलोमीटर्स, क्योंकि आप आए +2, वापस गए तो भी +2, फिर 5 किलोमीटर्स और आए शॉपिंग करने के लिए या कुछ भी मार्केट में लेने के लिए. देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू इज 9 किलोमीटर्स. लेकिन शॉप का और आपके घर का एक्चुअल डिस्टेंस कितना था? 5, क्योंकि आप बैग भूल गए. आप पहले आए, फिर वापस गए, फिर आप वापस आए, तो आपने कितना ट्रेवल किया? 9 किलोमीटर्स. लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितना था घर में और शॉप में? 5 किलोमीटर्स. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. ए और बीच के बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में, आई हैव टू, यही डायरेक्शन लेना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे नहीं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. So the shortest distance between any 2 points in a particular direction is called as the displacement covered by the body, right? So now we are going to discuss about the distance and displacement. Distance is a scalar quantity. It does not depends on the direction, and displacement is a vector quantity. It depends on direction. We cannot choose any other direction in order to find the shortest distance, right? Next is, it is always, second, it is always पॉजिटिव. ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, एड अप होगा डिस्टेंस, क्योंकि आप क्या निकाल लो? लेंथ ऑफ द पाथ, मैग्नीट्यूड चाहिए आपको सिर्फ. लेकिन ये क्या हो सकता है? इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. अभी आपने क्या बोला? आप घर से यहाँ पे गए शॉप पे, और शॉप से फिर वापस आ गए, तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या था? आपका घर. फाइनल पोजीशन क्या है? वो भी यही है. और फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन हमें क्या देता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सो फाइनल और इनिशियल तो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, राइट? अभी मैंने एक एक्सिस लिया, और ये एक्सिस में ये मैंने ओरिजिन मान लिया. आपका घर ओरिजिन था, आपको स्कूल आने के लिए यहां मूव करना पड़ा, लेकिन आपको किसी फ्रेंड के यहां जाने के लिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट लिया है. रेफरेंस पॉइंट मींस यहां से मैं मेजर कर रही हूं. सो ये वाला डायरेक्शन स्कूल का +5, ये वाला डायरेक्शन -4. ओरिजिन के लेफ्ट में जो भी हम लेंगे, जिस भी पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन मानेंगे, जब हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव. सो डिस्प्लेसमेंट कुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0. 0 से सपोज देयर इज सर्कुलर. अभी अर्थ का ही केस ले लेते हैं. अर्थ यहां से चलती है और 1 साल बाद यहीं पे आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय द अर्थ इज 0. It will travel some distance, but displacement will be 0. So displacement could be positive, negative or 0. Right? Third point says it may have many values. उसका बहुत सारा values हो सकते हैं, right?
एंड इट ऑल्सो टेल्स अस द नेचर ऑफ द पाथ, बॉडी कहां से गई है, नेचर ऑफ द पाथ भी हमें कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस से पता चलेगा। लेकिन यहां पे इट विल हैव यूनिक वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यूनिक ही रहेगी, क्योंकि हमने क्या वर्ड यूज किया, हमने कहा है शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट एक ही होगा, तो इट विल हैव अ यूनिक वैल्यू, इट कैन हैव मेनी वैल्यूज। अब इस वाले की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इस वाले की वैल्यू कम है, इसकी और कम है, कौन सा पाथ हमने लिया, कौन सा रास्ता हमने चुना है, उस पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, राइट। ओके, yeah, these are the differences. It specifies no idea of direction, यहाँ पे हमें नहीं पता चलता क्या डायरेक्शन है, और क्योंकि ये वेक्टर है तो इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, प्रॉपर डायरेक्शन हमें पता चलता है, एंड इससे हमें कोई भी नेचर ऑफ द पाथ नो आइडिया ऑफ नेचर ऑफ पाथ, कौन सा रास्ता लिया है, तो we cannot judge nature of the path on the basis of displacement. So these are the differences between distance and displacement, right children? I hope you understood. So these are the important terms that we are going to use in chapter again and again. Thank you so much.